So the name of the chapter is Fundamental Analysis. And in that chapter, we have ratios to be calculated, which is known as ratio analysis. Through ratio analysis, we can fundamentally check the progress of the company. Okay, so we have three different kinds of ratios. One is balance sheet ratios, next profit and loss ratios, and third one is combined ratios. So again, we have different parts of balance sheet, profit and loss, and combined ratios. So let's discuss each one of them. Now, we have number one, current ratio. So can you tell me the formula for current ratio? ये तो सबसे easy है. Current assets upon current liabilities. Current assets upon current liabilities. Come on, next, quick ratio. So what is quick ratio? You all know what are current assets and current liabilities. Am I right? Yes, ma'am. Yes. Now what is quick ratio? Quick assets upon quick Very good. liabilities. Quick assets upon quick liabilities. Now, can you tell me what is quick asset and what is quick liability? All current assets are quick assets except three: prepaid, advances, and closing stock. Any prepaid expense, any advance, and closing stock, they all are a part of current assets. But then, leaving these three, all others are quick assets. For example, debtors, bills, receivables. Am I clear, students? Cash. Yes, ma'am. Okay. Bank balance, cash balance, debtors, bills, receivables. All these are our quick assets. We have current assets, including all these items with closing stock, prepaid expenses as such. So only take out closing stock and prepaid expenses, you will get quick assets. Now come to current liabilities. Current liabilities, every current liability will be quick liability except one, bank OD. For example, you have bills payables, you have creditors, you have outstanding expenses. Am I clear, students? Yes, ma'am. Advance income. All these are my current liabilities. Bank overdraft. All these are my current liabilities. But then when you come to quick liability, no, you have to take out bank overdraft from the current liabilities. You will get quick liabilities. Okay. Next. Next is proprietary ratio. Proprietary ratio. Now, what do you mean by proprietary? What do you mean by that? Proprietary ratio? Shareholders. Who is proprietor of the company? The owner. Owner. When you call somebody as a proprietor, tell me. Come on, tell me. When you call somebody as a proprietor of the company, when somebody holds a good amount of shares in their hands, am I right? तभी आप बोलते हो कि ये कंपनी का ओनर है. Equity Yes, shareholders are the real owners of the company. Why? Because they hold that many shares of the company and therefore they have right to take decisions for the company, manage the company, and they have also voting rights for the company to choose who shall be, in the company and who cannot work in the company. They have all the decision powers. So they become proprietor of the company, the owner of the company. ठीक है? छोटे से बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो, जिसने सेटअप किया, जिसने इन्वेस्ट किया, वो प्रोप्राइटर होता है.
ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल एसेट्स डिवाइड बाय proprietor funds. Just a minute, huh? एक्चुअली खुल नहीं रहा है ना, नहीं तो इसमें से भी जल्दी जल्दी हो जाता। Just a minute. Let me come to that page. See, these are these are the ratios that we need to do. See, did you get this proprietary ratio? So the formula is shareholder funds, that is proprietor funds upon total assets into 100. So wait, let me write it for you. Okay, this will be in the denominator. So proprietary assets, or you can call proprietary funds, or you can call shareholder funds, one and the same thing. Do you understand proprietary funds, students? Yes, ma'am. Divided by total assets, copy paste करती हूँ, into 100. So why do we do into 100? To get the percentage. Proprietary funds मतलब आपने sources of funds, vertical balance sheet में आपने किया sources of funds. तो sources of funds में आपको जो upper part मिलता है ना, proprietary funds, उसका total equity shares, preference shares, reserves and surplus, less miscellaneous expenditure. So that time you get proprietary funds. And total assets comprises of three things: fixed assets, investments and current assets. ठीक है? Total assets comprises of how many things? Three. Fixed assets, बोलो. Total assets में क्या क्या होता है? Fixed assets plus investments plus current assets. yes, current assets. Next, we have capital gearing ratio.
नाउ कैपिटल गियरिंग रेशियो में आपको सिर्फ कैपिटल लेनी है, ना कि उसका डिविडेंड। तो कौन सा कैपिटल लेना, ध्यान से देखो। कैपिटल कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। मैं बताती हूँ आपको, इसका मतलब भी बताती हूँ, और क्या आना आना है इसमें वो भी बता दूंगी। सो सबसे पहली बात तो आपको ना इसमें कैपिटल कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट नहीं लेना है। यू हैव टू टेक कैपिटल विच कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके पास दो ही कैपिटल होती है, एक प्रोप्राइटर्स कैपिटल, एक बोरोड कैपिटल, मतलब प्रोप्राइटर फंड्स एंड बोरोड फंड्स, यही दो होते हैं। एम आई राइट? Yes, ma'am. तो इन दोनों में से आपके पास ऐसी कौन सी कैपिटल होती है जिनके पास फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है या इंटरेस्ट होता है? Borrowed capital. बोरोड फंड्स में, वेरी गुड। तो मैं अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और इंटरेस्ट को अगर मैं ऐसे लिखूं बोरोड फंड्स तो चलेगा, लेकिन अधूरा है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज लगेगी, प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता होगा, Preferential. वेरी गुड, आपको पता होगा कि प्रोप्राइटरी फंड्स में से एक पार्ट ऐसा है, प्रेफरेंस कैपिटल, जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। एम आई राइट? Yes, ma'am. तो इसीलिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब बोरोड फंड्स को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। तो दोनों का मैंने कैपिटल ले लिया, होल डिवाइडेड बाय दैट कैपिटल विच डज नॉट कैरी कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। अब ये जो नॉट वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में क्या आएगा? कॉमन सेंस। दो ही क्या, वेरी गुड, दो ही चीजें होती हैं, एक प्रोप्राइटर्स फंड्स, एक बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स तो नीचे आ गया, तो ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा? प्रोप्राइटर फंड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोप्राइटर प्रोप्राइट सॉरी प्रोप्राइटरी फंड्स। लेकिन प्रोप्राइटर फंड्स में से भी जो प्रेफरेंस है वो न्यूमरेटर में चला गया, तो माइनस कर देंगे यहाँ से हम अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बराबर समझ में आया? क्योंकि वो ऊपर चला गया ना न्यूमरेटर में। एम आई क्लियर? मैम Yes, फिर से ma'am. बताओ एक बार। देखो, कैपिटल गियरिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है कैपिटल गियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। मतलब स्टूडेंट्स 10 मिनट्स दिखा रहा है मुझे, 40 मिनट्स का ही हमको स्लॉट है ना ये, तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? Yes, ma'am. कैपिटल गियरिंग रेशियो में फॉर्मूला कैसे होती है, हमको कैपिटल लेनी होती है। तो कैसे लेना है, देखो, कैपिटल कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो मैंने इसको इलेबोरेट किया, कैपिटल कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में कौन सा कैपिटल आएगा? पहले तो डिविडेंड के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में सोचो। कौन सा ऐसा कैपिटल है जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है? बोरोड फंड्स। कौन सा ऐसा कैपिटल होता है जिसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? बोरोड फंड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एम आई क्लियर? यस मैम। अब नीचे डिनोमिनेटर में कैपिटल नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है। तो आपके पास दो ही कैपिटल होती है, एक प्रोप्राइटर, एक बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स तो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो नीचे बचेगा सिर्फ प्रोप्राइटर फंड्स। लेकिन प्रोप्राइटर फंड्स में से भी प्रेफरेंस शेयर्स को आपने ऊपर डाल दिया क्योंकि उसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है।
तो नॉट कैरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड में तो वो नहीं आएगा, इसीलिए हमने डिनोमिनेटर में से प्रेफरेंस शेयर्स को माइनस कर दिया। ये देखो, प्रोप्राइटर फंड्स माइनस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अभी नेक्स्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो के बाद है आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नहीं स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसके नाम में ही फॉर्मूला है, देखो क्या नाम है इसका, स्टॉक वर्किंग कैपिटल। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही है, देखो कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉमन सेंस, क्योंकि हम बैलेंस शीट रेशियोज कर रहे हैं, बैलेंस शीट में कभी ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100। अच्छा आप मुझे बताओ, मुझे समझाने की जरूरत है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और कहाँ होता है बैलेंस शीट में? कहाँ होता है बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक? असेट साइड। करंट एसेट्स, वेरी गुड। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? Current assets minus current liability. वेरी गुड, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वेरी गुड। नेक्स्ट है तो लास्ट, क्योंकि बैलेंस शीट में 6 रेशियोज होते हैं, तो वी हैव डन 5। द लेफ्ट ओवर इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला देखो, नाम में ही फॉर्मूला है, डेट इक्विटी, दो चीजें हैं ना, डेट और इक्विटी, तो फॉर्मूला भी वैसे ही है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। लेकिन इसको मैं इलेबोरेट करूंगी। डेट अपॉन इक्विटी मतलब, डेट मतलब बोरोड फंड्स, एम आई राइट स्टूडेंट्स? यस मैम। डेट मतलब बोरोड फंड्स और इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर फंड्स। प्रोप्राइटर फंड्स, एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, इसको मैंने इलेबोरेट कर लिया। जहां जहां इलेबोरेशन की नीड है ना, आपको टेक्स्ट बुक में इलेबोरेट किया हुआ नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा अभी वैसे भी आपको करवा ही रही हूँ तो मैं आपको लिख के करवा दूं सब। ठीक है, तो ये शेयर कर लूंगी मैं तुम्हारे साथ डॉक्यूमेंट, डोंट वरी। लेट मी जस्ट सेव इट इन माय ड्राइव, आई मीन डाउनलोड्स में। ठीक है, बैलेंस शीट रेशियोज में कुछ डाउट है? नो मैम। है? ठीक है, गुड। चलो, नाउ वी विल बिगिन विद प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज में सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला बता देती हूँ इसकी। इसकी फॉर्मूला होती है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अभी ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, आपने वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा है। वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको सेल्स माइनस सीओजीएस करते हो तो क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। एम आई राइट? Yes. यस मैम। यस। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जब आप सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते हो तो आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कैसे है, एंड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब सेल्स में से आप जैसे टीडीएस वगैरह है या फिर कुछ रिटर्न्स है वो काट दो, तो आपको मिलेगा Net sales. नेट सेल्स में। वेरी गुड।
तो दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे, आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। अभी जब वो बोले ना नेट प्रॉफिट रेशियो, तो देर आर टू पार्ट्स। वन इज, रुको, वन इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो, net profit before tax ratio, and the other one is net profit after tax ratio. दोनों की फॉर्मूला में फर्क क्या है? सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर का। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स? वर्टिकल पीएनएल आपको याद होगा। नेट प्रॉफिट फॉर्मूला भी वही है, जो बोल रहा है ना वही फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फॉर्मूला भी वैसे ही है, सेम। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। और वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, वो आपको एक बार थोड़ा याद करना पड़ेगा, कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। उसका फॉर्मेट याद करोगे तभी जाके तो फॉर्मूलाज आएंगी ना, कैसे आएंगी नहीं तो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, अब ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ऑपरेटिंग दो वर्ड्स हैं इसमें, तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ऑपरेटिंग वर्ड यूज किया उसने, मतलब जो कुछ चाहिए ना मुझे ऑपरेटिंग चाहिए, तो ऑपरेटिंग का मतलब जब जब कंपनी से रिलेटेड कुछ होता है, तो सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि जैसे आपने इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले लिया अम, अम, क्या बोलते हैं इसको, रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे, रॉयल्टी पेड ऑन रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेते हो ये सारे खर्चे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेते हो आप ये? Yes, ma'am. फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, फिर डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ सीओजीएस। तो सीओजीएस लेकर फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी लेना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के देयर आर 3 पार्ट्स: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड finance expenses. Remember? Yes. Sorry, selling and distribution expenses. Very sorry. I repeat once again. Operating expenses के 3 parts होते हैं: office and administration, selling and distribution, and factory overheads. ठीक है, मैम डिवाइड बाय फाइनेंस नेट होता है। सेल्स इनटू 100।